Hello students, how are you? I hope you are doing great at your home. Okay, so in my previous videos I have taught you regarding the noun, definition of noun, its examples and its types of noun, right? I hope you have watched it earlier, right? Okay, so today I am going to elaborate, or I'm going to teach you a new topic, a different topic, and related to it noun only, that is singular plural noun. Okay, after knowing what is noun and how many types of noun, we have to identify, or we have to know that how it is different from each other, how singular plural nouns is going to be used, right? So firstly I'll be explaining singular noun. As itself is, it's the definition in its name only, like singular means single. Okay, so singular noun is the noun which indicates single thing or a place, person, animal or thing. ठीक है, single चीज. So for an example, a ball, a teddy bear, a table, a chair, okay, a phone, right, a book, a notebook, anything which is singular. ठीक है, it can be anything which is singular, and that all comes under singular noun, right? Okay, so our second one is plural noun. Okay, as itself the name suggests plural. Plural means ज़्यादा, एक से ज़्यादा. Like in Hindi we have already studied in our primary classes. Like have you heard about the ekvachan and bahuvachan, right? So it's the same thing in English, we can say, right? So plural noun is the noun which indicates more than one person, place, animal or thing. ओके, सो इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होगी. ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़. लाइक आई हैव 2 balls. तो बॉल्स, अगर यहाँ पर सिंगल बॉल होती तो हम बोलेंगे अ बॉल. ठीक है, बट हेयर इट इज़ मोर देन 1 बॉल, सो हम क्या बोल रहे हैं, बॉल्स. ठीक है, तो बेसिकली ये वी आर एडिंग एस. ठीक है, टू मेक एनी वर्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल वी आर एडिंग एस और ई एस. ठीक है, वील टॉक अबाउट इट लेटर. सो अभी आप ये समझिए कि प्लूरल चीज़ें कैसे होंगी. लाइक बॉल्स, ठीक है, हमने ऐसे ऐड करा. टेबल्स, ठीक है, बलून्स, चेयर्स, टेम्पल्स, नोटबुक्स. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, मोबाइल फोन्स, टेडी बेयर्स, राइट, कर्टेन्स, डोर्स. ठीक है, मार्कर्स, राइट, वाइट बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, जो भी मोर देन 1 थिंग होगी उसको हम प्लूरल नाउन बोलेंगे. प्लूरल नाउन में वो काउंट होगी, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ देयर आर बेसिकली 10 रूल्स. ठीक है, हाउ टू convert singular noun to plural noun, and here are some exceptions also. ठीक है, so side by side I am also telling you the exceptions under these rule only, so that please don't just mug up the things. ठीक है, there is no need to mug up the things. You just have to observe the things and learn the basic rules to make singular noun to plural noun. आपको मतलब इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको इसमें समझना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा रूल में क्या लग रहा है, बिकॉज इट कुड बी हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. लाइक हाउ टू करेक्ट द सेंटेंस. ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक, सो यू कैन फाइंड आउट ऑफ दीज. लाइक सो बेसिकली वी हैव टू आइडेंटिफाई द बेसिक सेंटेंस इन इंग्लिश. ठीक है, वी हैव टू नो हाउ टू frame the basic sentence of English, so that's only then only we have make corrections out of the sentence, right? So okay, here we have rule 1. So rule 1 में I have already taught you, like we add s to make them plural. To make singular to plural, add s to the end.
ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं डैश एस। इसका मतलब है हमें अगर हमें कोई प्लूरल नाउन, इफ एनी प्लूरल नाउन इज गिवन, सो हाउ टू मेक इनटू कन्वर्ट इनटू प्लूरल, सॉरी, if we have a singular noun, so how to make into plural? For example, car is singular, right? So to make it plural we are adding s. This is very simple rule number 1, हमें क्या करना है, s को ऐड करना है किसी भी नाउन के पीछे, किसी भी नाउन के एंड में, लाइक टेबल tables, ठीक है, बॉय बिकम बॉयज एंड कार बिकम कार्स. इट कुड बी एनी एग्जाम्पल लाइक टेम्पल बिकम्स टेम्पल्स, मॉस्क बिकम मॉस्क्स, एस ऐड करना है हमें, ठीक है. चर्च बिकम्स चर्चेस, ठीक है. सो हाउ in church example we are not adding only s, ठीक है. So then we have to know about the rule number 2, right? So our rule number 2 is, yes, our rule number 2 is, if singular noun ends with s, ss, you can call double s, ch, sh, z or x, ठीक है, then we have to add es to the end. हमें क्या करना है, es लगाना है उस वर्ड के पीछे. तो इन दिस रूल आपको ये लर्न करना है, ठीक है, कि अगर कोई वर्ड एस से फिनिश हो रहा है, एस एस से फिनिश हो रहा है, सी एच से फिनिश हो रहा है, एस एच से फिनिश हो रहा है, जेड से फिनिश हो रहा है, या फिर एक्स से फिनिश हो रहा है, उसके पीछे मुझे ई एस लगाना है, ठीक है. ये आपको याद करना पड़ेगा. अब देखो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल बस, तो बस एंड्स विद एस ना, बस एंड्स विद एस, सो इसलिए हमने ई एस लगा दिया, ठीक है. विश के पीछे क्या है, एस एच से एंड हो रहा है, एस एच इज हेयर, ठीक है, दैट्स वाई आई हैव एडेड ई एस एट द एंड. नेक्स्ट वन इज फॉक्स एंड्स विद एक्स, दैट्स वाई आई हैव एडेड ई एस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट. मैच, तो मैच वर्ड एंड्स विद सी एच, राइट, दैट्स वाई आई हैव एडेड ई एस. सेम विद टैक्स एंड सेम विद ब्रांच, ठीक है. एंड बिफोर आई हैव टोल्ड यू लाइक चर्च एग्जाम्पल, ओके, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ चर्च. तो चर्च, स्पेलिंग ऑफ चर्च इज लाइक हियर आई एम राइटिंग, ओके, CHURCH, ओके. चर्च ऑल्सो एंड्स विद CH, ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू विद दिस, हाउ टू मेक इट प्लूरल, वी हैव टू ऐड ES, राइट, वी हैव टू ऐड ES, churches. Okay, got my point. But in this rule we have some exceptions. Okay, so you have to learn the exceptions, ठीक है. Yes students, so here is the exceptions. Look, I am writing all the exceptions here, ठीक है, but I'll not write all the words because there is some, time limitations, right? We have so much course to complete. So इसलिए मैंने जो आपको पहले बताया था वो वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, एनी वर्ड, उस सब में अकॉर्डिंग टू द रूल आपको उसमें एस और ई एस लगाना है, राइट. बट इन एक्सेप्शंस में मैं एक्सेप्शन सारी कवर करूँगी, ठीक है. आई विल बी कवरिंग ऑल दी एक्सेप्शंस, ठीक है, सो दैट वो आप एक्सेप्शंस याद कर लो. एक्सेप्शंस में आपको पता होगा क्या करना है, तो जो नॉर्मल रूल होगा वो आपको हर वर्ड में वो लगेगा ही लगेगा, अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्शंस, राइट. सो फॉर दिस रूल, ES रूल, वी हैव ओनली 3 एक्सेप्शंस, ठीक है. एक्सेप्शंस, इन एक्सेप्शंस में सिर्फ हमें S लगाना है. फॉर एग्जाम्पल स्टमक, हम अब देखो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट में CH आ रहा है, दिस वर्ड ऑल्सो एंड्स विद CH, बट वी विल नॉट राइट स्टमक्स, ES नहीं लगेगा इसमें ओनली S लगेगा, इसलिए इसको हम एक्सेप्शंस में ले रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके. रेडियस, तो रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई. अपने हम मैथ्स की बुक में हमने कितनी बार रीड किया है, 10th 12th, ठीक है. मैथ्स की बुक्स में भी क्या होता है, अगर कुछ प्लूरल दिया होता है, अगर 2 रेडियाई दिया होता है तो लिखा होता है रेडियाई ऑफ 7 और 4 और एनीथिंग, ठीक है. तो रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, ठीक है. एंड लोकस मीन्स लोकाई. इन तीनों में फॉर दीज 3 वी हैव नॉट अप्लाई द रूल ऑफ ES, ओके, राइट.
Okay, so now I am telling you the next rule, that is our rule number 3. Yes students, so our next rule is rule number 3. In this, what is the rule is all about? If a singular noun ends with f or fe, आप कोई सा भी वर्ड उठा लो और अगर वो एंड हो रहा है f या fe से, तो हमें क्या करना है, देन f इज़ डिलीटेड, हमें उस वर्ड में से f को हमें डिलीट कर देना है और f की जगह वी हैव टू राइट ves टू मेक इट प्लूरल. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल लीव. अब देखो यहाँ से मैंने इसको f को कट कर दिया तो क्या बना, और ves को ऐड कर दिया तो इट बिकम लीव्स. ओके, नेक्स्ट वन इज नाइफ. सेम रूल अप्लाइज विद द नाइफ. ओके, इट बिकम्स नाइफ्स. देन शेल्फ, शेल्व्स. थीव, थीव्स. काफ, काफ्स. ठीक है, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स. ठीक है, लाइफ, लाइव्स. स्कार्फ, स्कार्फ्स. ओके, एंड वाइफ, वाइव्स. ओके, सो ये रूल आपको लर्न करना है एंड इस रूल के साथ साथ आपको इस रूल की एक्सेप्शंस, यू हैव टू लर्न द एक्सेप्शंस ऑल्सो. ओके, सो आई एम राइटिंग द एक्सेप्शंस. या सो हेयर इज़ योर एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस में क्या करना है, एक्सेप्शंस मीन्स, एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं, दीज आर दैट काइंड ऑफ वर्ड्स वेयर वी should not or we could not use or apply the rule. Now that is rule number 3. ठीक है, hence rule is applying. ठीक है, rule apply हो रहे हैं इस पे, rule is applying on this word, but we should not apply the rule of ves. For an example, roof become roofs. We have to only add s. ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ROOVES, roofs. ठीक है, that becomes wrong. Fine. So this is the meaning of exceptions. Exceptions. ठीक है, number 2 is chief. It becomes chiefs. Dwarf becomes dwarfs. Proof becomes proofs. Gulp becomes gulps. Safe becomes safes. And belief becomes beliefs. ठीक है, these are the exceptions. Okay, now come to next rule, that is rule number 4. Okay students, so the rule number 4 is if our singular noun, अगर हमारी singular noun end होती है y पर, ठीक है, तो letter before y is अगर, and if the letter before y is consonant. Okay, so firstly we have to know what is vowels and what is consonant before understanding this rule, right? Rule number 4. Okay, so what is vowel? We have also studied in our previous classes what is vowel. Okay, so we have total 26 alphabets in our English, A to Z, right? So out of these alphabets we have only 5 alphabets that is vowel, and the vowel is A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. These are vowels. Rest except these 5 alphabets, rest is consonants. इस जो बचे हैं इसके अलावा उसको हम consonant बोलते हैं. ठीक है, okay, so now come to the rule. If any singular noun or if any word ends with y, ठीक है, कोई भी word y है और y से पहले letter before y is consonant, अगर letter before y consonant है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस y को हम डिलीट कर देंगे. देन डिलीट y एंड ऐड ies टू मेक इट प्लूरल. तो हम क्या करेंगे, ies को ऐड कर देंगे. आई नो इट सीम्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड, ओके, एज आई हैव रिटन इट्स डेफिनेशन और इन थियोरिटिकल, बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन पार्ट आई विल मेक अ चार्ट फॉर यू गाइज. ओके, सो नेक्स्ट वन इज इफ अ लेटर बिफोर वाई इज वॉवल. अगर वो जो लेटर बिफोर वाई है अगर वो वॉवल है, मतलब A, E, I, O, U है, तब हमें सिर्फ S को ऐड करना है. ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द चार्ट ऑल्सो. यस स्टूडेंट्स, सो आई हैव मेड अ चार्ट फॉर यू, ओके, टू मेक इट सिंपलियर फॉर यू, राइट? So but you have to learn one thing, right? If any noun is ends with y, तब हमें क्या करना है? ठीक है, अगर कोई भी नाउन एंड हो रही है ना y से, देन हमें क्या करना है, अगर लेटर बिफोर y अगर कॉन्सोनेंट है, इफ़ द लेटर बिफोर y इज कॉन्सोनेंट,
तो हम क्या करेंगे, IES लगा देंगे, ठीक है। इफ़ द लेटर बिफोर Y इज वॉवल्स, तो हम क्या कर देंगे, ओनली वी हैव टू ऐड S एट द लास्ट, राइट। सो हेयर इज द एग्जाम्पल, राइट, सिटी, ठीक है, सिटी। तो हेयर सिटी, द वर्ड सिटी एंड्स विद Y, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेटर बिफोर Y, यानी कि Y से पहले कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। टी, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल तो है नहीं, क्योंकि वॉवल ओनली 5 होते हैं, AEIOU, राइट। सो हमें क्या करना है, IES हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए प्रिपेयर किया है चार्ट आप लोगों के लिए, लाइक इन विच आई एम डिफ्रेंशिएटिंग द एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स, सो दैट इट मेक ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। सो सिटी, सिटीज़, बेबी, बेबीज़, आर्मी, आर्मीज़, फैमिली, फैमिलीज़, country, countries, puppy, puppies. Okay, okay, just have a look at vowel part. Here is some light reflection, so bear with me. Okay, so the example is key, keys, toy, toys, boy, boys, day, days, and ray, rays. ठीक है। And student, one more thing, I am explaining in detail of this topic because देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मगिंग ऑल द थिंग्स, बिकॉज कितनी चीज़ें आप रट सकते हो, ठीक है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इतना कुछ माइंड में नहीं रहता है। तो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड में कि वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, तो जो भी रटा होता है सब बेकार हो जाता है। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सारी डिटेलिंग्स दे रही हूँ, ठीक है, कि आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करें और वहाँ पर कुछ भी, अब इतने सारे वर्ड्स होते हैं, आप हर एक वर्ड को रट नहीं सकते हो, ठीक है। सो इसलिए आपको बस थोड़े से रूल्स, इतना कुछ ये याद करना पड़ेगा, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रूल, और अकॉर्डिंगली आप अपना सिंगुलर को प्लूरल में बना सकते हो। ओके, ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रूल, दैट इज़ रूल नंबर 5। ओके, so here are our next rule, that is rule number 5. Okay, so what is the rule is all about, if a singular ends with O, हमें ये देखना है अगर कोई भी singular end हो रहा है O से, then what we have to do, we have to add just ES at the end, add just ES at the end। हमें क्या करना है, ऐड करना है ES को सबसे लास्ट में। लाइक देखो इंग्लिश में जो बेसिक्स हैं ये इसलिए पढ़ाए जाते हैं बिकॉज टू यू नो हाउ यू विल बी फ्रेमिंग द सेंटेंस आफ्टर यू नो नोइंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। लाइक आई ईट 1 मैंगो, देयर इज़ नो प्लूरल थिंग, इज नो प्लूरल नाउन इज़ यूज बिकॉज आई ईट ओनली 1, यानी कि सिंगुलर नाउन यूज़ हो रही है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा मैंगो। बट if I eat more than 1 mango, then how could you say that? तो इसलिए ये सिंगुलर प्लूरल नाउन इम्पॉर्टेंट होती है। लाइक आई ईट 2 मैंगोज, वहाँ पर आप प्लूरल नाउन लगाओ, ठीक है। आई ईट 2 टोमेटोज, गॉट इट। सो ये these are the examples, potato potatoes, tomato tomatoes, mango mangoes, buffalo buffaloes, and volcano volcanoes, ठीक है। all the words ends with O and we have to make plural by adding es by adding es at the end, but in this rule we have some exceptions, ठीक है। and what will be the exact exceptions for this? Yes, here is the exceptions. There are only 6 exceptions you have to learn, and rest all the words related to O उसमें हम ES ही लगाएंगे, ठीक है। So for this you have to learn these 6 exceptions, ठीक है। Why I am calling these exceptions, because it in for this words we does not apply, you know, we do not apply the rule ES, or you can say we are not applying ES at the end, right? So let's read the exceptions. 0 zeros, kilo kilos, moto motos, photo photos, radio radios, and logo logos, got it? तो इसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स हैं वो ओ से ही एंड हो रहे हैं, बट वी आर नॉट अप्लाइंग और वी आर नॉट एंड this with ES,
राइट, बिकॉज उसकी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो जाती है। लाइक अब देखो ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो को अगर ज़्यादा हमें बोलना है तो अकॉर्डिंग टू रूल मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ZEROES, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द राइट स्पेलिंग ऑफ ज़ीरो, ठीक है। दैट इज़ वाई दीज वर्ड्स आर इनटू एक्सेप्शंस, राइट। ओके okay students, so these all are the rule 5, 1 to 5 I have teach you, and the rest rule will be covered in my next video. Okay, till then, bye bye, take care.